بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور پولیس کا سربراہ پھر تبدیل۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ ہاشم محمود ڈوگر کا سی سی پی او کی حمایت میں بیان آ گیا۔ لکھا، پنجاب حکومت کے اگلے حکم تک غلام محمود ڈوگر چارج نہیں چھوڑیں گے۔ سی سی پی او لاہور کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ علی اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی علی اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھا جائے تو وفاقی حکومت اور پنجاب کے درمیان جو ہے وہ سیاسی مہاجرائی جاری ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سی سی پی او لاہور کا جو ہے وہ تبادلہ کیا گیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سی سی پی او لاہور کو جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنا چارج نہ چھوڑیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سی سی پی او کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا جو تبادلے کا چارج ہے وہ کسی صورت نہ چھوڑے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سیاسی انتقام لے رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سی سی پی لاہور کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ وہ اپنا چارج نہ چھوڑیں، جس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب اور وفاق کے درمیان جو ہے وہ نئی ماجرائی شروع ہو چکی ہے۔ جی علی اکبر، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ چارج نہ چھوڑیں، لیکن کوئی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کب تک چارج نہ چھوڑیں؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری فیروز اللہ کی جانب سے جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ سی سی پی او کو وہ اپنا چارج نہ چھوڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو لے کر ساتھ چلیں گے۔ بیوروکریسی کی جو ان کی ٹیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنے افسران تعینات کیے ہیں وہ کسی بھی صورت جو ہے وفاق کے تابع نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور ان کی جانب سے جو جی علی اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ پولیس میں تبادلوں کی نئی لہر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن سمیت 16 افسر تبدیل کر دیے گئے۔ عمران کشور ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر پنجاب کانسٹیبلری تعینات ہوئے۔ حسین حیدر ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور مقرر کر دیے گئے۔ سید حسنین حیدر ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور تعینات کر دیا گیا۔ توقیر محمد نعیم کو ایڈیشنل ایس پی ڈولفن لاہور کا چارج مل گیا۔ غلام دستگیر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سول لائن ڈویژن لاہور تعینات، کام بطور سی آئی اے انچارج کریں گے۔ عمران کشور کا ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر پی سی فاروق آباد تقرر کر دیا گیا۔ غلام مبشر میکن ایس ایس پی انٹیلیجنس اسپیشل برانچ پنجاب تعینات ہو گئے۔ شائستہ ندیم کا ایس ایس پی پولیس اسکول آف انٹیلیجنس تقرر کر دیا گیا۔ ایس ایس پی فیصل شہزاد پی ایس او 2 آئی جی پنجاب تعینات کر دیے گئے۔ ذیشان رضا کا ایس ایس پی ایڈمن اسپیشل برانچ پنجاب تقرر کیا گیا۔ عارف شہزاد خان وزیر کو ایس ایس پی پولیس ٹریننگ اسکول راولپنڈی تعینات کیا گیا۔ عامر خلیل، خالد محمود رانجھا، ناصر عباس، ثقلین جعفر، اظہر یعقوب، آصف ندیم، حافظ امتیاز احمد کو بھی نئی ذمہ داریاں مل گئیں۔ بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے، سیکرٹری آرکائیو ثاقب بنان کمشنر راولپنڈی تعینات ہوئے۔ غلام فرید کمشنر گجرانوالہ تعینات ہوئے، جبکہ جاوید اختر محمود کو کمشنر ساہیوال تعینات کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ خرم نیازی ڈی سی سیالکوٹ تعینات ہوئے۔ کمشنر ساہیوال سلوت سعید کو او ایس ٹی بنا دیا گیا، جبکہ ڈی سی سیالکوٹ محمد میسم عباس کو بھی او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے، سیکرٹری آرکائیو ثاقب بنان کمشنر راولپنڈی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب غلام فرید کمشنر گجرانوالہ تعینات کیے گئے ہیں۔ جاوید اختر محمود کو کمشنر ساہیوال تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ عبداللہ خرم نیازی ڈی سی سیالکوٹ تعینات کیے گئے ہیں۔ کمشنر ساہیوال سلوت سعید کو او ایس ٹی بنا دیا گیا، جبکہ ڈی سی سیالکوٹ محمد میسم عباس کو بھی او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ مہنگا آٹا بھی نایاب ہو گیا، آٹا کہاں سے ملے گا؟ شہری آٹے کی تلاش میں در بدر۔ حکومت نے 20 کلو آٹے کا تھیلا 330 روپے مہنگا کیا۔ نئی قیمت 980 سے بڑھا کر 1310 کر دی گئی۔ اطلاق آج سے ہوگا۔ حکومت کی جانب سے آٹے کی قیمتوں میں 660 روپے فی من کا اضافہ تو کر دیا گیا، لیکن شہر کے اکثر و بیشتر علاقوں میں آٹے کی سپلائی کی اب بھی بدترین صورتحال ہے۔ کو ریلیف دینے کی دعویدار حکومت غریبوں پر بھاری پڑنے لگی۔ پنجاب حکومت نے 20 کلو آٹے کا تھیلا 330 روپے مہنگا کر کے 1310 روپے کا کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کے باوجود شمالی لاہور، جنوبی لاہور، گلبرگ اور بند روڈ سمیت متعدد علاقوں میں آٹے کی سپلائی کی بدترین صورتحال نے شہریوں کے لیے 2 وقتی روٹی کھانا بھی دشوار کر دی۔ کوئی چیز نہیں جا رہی،
500 से 700 रुपये दिहाड़ी लगती है, उस बाद सारा साल वेखो इन्ना संभाल ही जाने और सुबह नहीं लगती, वेले होंदे रहने सारा दिन, काम तो है ही कोई नहीं, इत्थे महंगाई हैगी। आटा नहीं मिलता पिया, आटा 2-3 हफ्ते तो नहीं आटा मिलता नहीं पिया, आटा महंगा भी किया तां भी नहीं आटा मिलता पिया, ते आज फिर आटा लेने वास्ते आए, आटा नहीं मिला। शहरियों ने कहा कि हुकूमत ने जल्दी पर तेल का काम करते हुए आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कम आमदनी वाले और किराएदार शहरियों के लिए बच्चे पालना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। किराना फरोशों ने कहा कि मिलें उन्हें कलील मिकदार में आटा फराहम करती हैं, वो शहरियों को आटा देने से कासिर हैं। आटे की इतनी ख़राब पोजीशन हुई पड़ी है कि आटा मिल ही नहीं रहा बेचारों को, हमें भी नहीं मिल रहा, बेचारे जो लेने वाले आ रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहा, वो महंगा आटा लेने में मजबूर है, 110 रुपये किलो फाइन आटा। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ज़बानी जमा खर्च की बजाय कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के लिए हकीकी इकदाम करें। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लेस्को ने अगस्त के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। मुकर्रर तारीख में बार बार तौसीह से इकसात से रिकवरी मुतासिर हुई। बकाया जात करंट बिल इकट्ठा होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम सार्फिन के लिए माह अगस्त के बिलों की इकसात पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि कंपनी ने बकाया जात की रकूम की 2 इकसात करने की इजाजत दी है, क्योंकि गुज़िश्ता माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की इकसात होने पर सार्फिन को बकाया जात भिजवाए गए हैं। बकाया जात और करंट बिल इकट्ठा होने की वजह से सार्फिन को अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने मौजूदा बिल की अदायगी के लिए ठोस इकदाम करने की हिदायत की है। माह अगस्त के बिलों की वसूली के लिए रिकवरी अहदाफ को हासिल किया जाएगा। गुज़िश्ता माह बार बार मुकर्रर तारीख में तौसी और इकसात से रिकवरी मुतासिर हुई है। ट्रेनों की बंदिश से फ़ज़ाई किरायों में इजाफा हो गया। PIA, सिरीन, एयर सियाल और एयर ब्लू ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से कराची PIA का एक तरफा किराया 39,540 रुपये तक जा पहुंचा। लाहौर से कराची के लिए 26 दिन से ज्यादा बंद ट्रेन ऑपरेशन के असरात सामने आना शुरू हो गए। मुसाफिरों की तादाद में इजाफे से PIA, सिरीन, एयर सियाल और एयर ब्लू के किरायों में इजाफा हो गया। लाहौर से कराची PIA का एक तरफा किराया 39,540 रुपए तक पहुँच गया। लाहौर से कराची PIA का टिकट कम से कम 20,000 रुपए, लाहौर से कराची सिरीन एयर का टिकट 31,000 रुपए, लाहौर से कराची सिरीन एयर का टिकट कम से कम 28,000 रुपए, लाहौर से कराची एयर सियाल का किराया 28,185 रुपए, लाहौर से कराची एयर सियाल का कम अज कम किराया 21,150 रुपए, लाहौर से कराची एयर ब्लू का एक तरफा किराया 19,125, लाहौर से कराची एयर ब्लू का एक तरफा कम अज कम किराया 17,725 में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब MCL की अरबों मालियत की 102 जायदादों पर कब्जे का इंकशाफ। 1998 में 50 जायदादें नीलाम हुई और खजाने में एक पाई जमा ना हुई। मैकलोड रोड, माल रोड, किला गुजर सिंह गाम गली नंबर 11 में कब्जे हुए। कमिश्नर लाहौर ने जायदादों से कब्जा वागजार कराने का टास्क चीफ ऑफिसर MCL को तफवीज कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टीज पर गुज़िश्ता कई बरसों से कब्जा है। डायरेक्टोरेट स्टेट मैनेजमेंट काबजीन से किराया वसूल करने में भी नाकाम है। मैकलोर रोड मक मार्केट की दुकानों, माल रोड और अब्दुल करीम रोड किला गुजर सिंह पर रिहायशी जमीन, किसान मार्केट राम गली नंबर 11 में ट्रिपल स्टोरी रिहायशी व कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया। डेविस रोड पर निजी होटल से मुल्हिका कमर्शियल दुकानों और किला गुजर सिंह में हमजा सेंटर से मुल्हिका कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया। बिटन रोड और लिटन रोड पर भी मेट्रोपॉलिटन की प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया गया है। सरकारी स्कूलों को मिलने वाले 88 करोड़ के गैर मुल्की फंड लैप्स होने का इंकशाफ हुआ। महकमा खजाना ने आसान अकाउंट में फंड ट्रांसफर किए, फिर भी इस्तेमाल ना हुए। आलमी बैंक ने 1.5 अरब रुपए से जायद का फंड लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों को दिया था, जिसमें 88 करोड़ रुपए का फंड पंजाब हुकूमत माली साल 2021 और 2022 में मुकर्ररा वक्त के अंदर खर्च न कर सकी। मालियाती पॉलिसी के बाइस फंड गुज़िश्ता माली साल में इस्तेमाल न होने पर जाया हो गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक फंड इस्तेमाल न होने पर सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए बेशतर मंसूबे भी अधूरे रह गए। ज़राए का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने बाकायदा हुकूमत को आगाह किया और फंड के दोबारा इस्तेमाल की इजाजत मांगी है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद आबाई शहर पर नवाजिशात की बरसात। गुजरात सूबे का अहम तरीन शहर बन गया। गुजरात के लिए 200 ट्रैफिक असिस्टेंट्स, 500 कांस्टेबल मांग लिए गए।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के शहर पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। गुजरात के जनरल और ट्रैफिक कैडर में मजीद नफरी मांग ली गई। जिला गुजरात के लिए 200 ट्रैफिक असिस्टेंट मांग लिए गए। वज़ीर आला पंजाब के शहर के लिए 500 कांस्टेबल फराहम करने का भी मुरासला जारी। IG ऑफिस को DPO ऑफिस से भेजा गया, मुरासला मिल गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुजरात में इस वक्त 3400 पुलिस एहलकारों की नफरी मौजूद है। जिला गुजरात में कंजा डंगा रोड की बहाली के लिए 64 करोड़ 56,32,000 रुपए मंजूर कर लिए गए। दीगर इलाकों में भी तरक्याती कामों की मंजूरी दे दी गई। पब्लिक बिल्डिंग्स और रोड सेक्टर्स की 8 तरक्कियां स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 6 अरब 12 करोड़ 45,77,000 रुपए की मंजूरी हुई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में फैसले किए गए। कौन सा होटल और रेस्टोरेंट कितना अच्छा और मेयारी है? पंजाब फूड अथॉरिटी ने स्टार रेटिंग प्रोग्राम के पायलट फेज का आगाज कर दिया। फूड अथॉरिटी ने पायलट प्रोजेक्ट में लाहौर समेत 5 बड़े शहरों के 250 रेस्टोरेंट्स को शामिल कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी अब स्टार्स रेटिंग सिस्टम के जरिए रेस्टोरेंट्स के मयार की दर्जाबंदी करेगी। स्टार्स रेटिंग सिस्टम की प्री लॉन्चिंग में सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मलिक गजनफर छीना, सरदार शहाबुद्दीन, आमर अनायत शहानी ने शिरकत की। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी अली रजा हाकवानी, DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जुदून, DG कश्मीर फूड अथॉरिटी अतीक सहावत और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि दीगर ममालिक में लोग रेस्टोरेंट में जाने से कबल बाकायदा रेटिंग चेक करते हैं। सूबाई वजीर सेहत बोली कि स्टार रेटिंग सिस्टम सेहत बख्श खुराक के फरोग में संगे मील साबित होगा। और फूड अथॉरिटी की ये जिम्मेवारी उठाना बहुत ही मुस्बत कदम है। मैं आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम आइंदा के लिए लोग आपका ऐप इस्तेमाल करेंगे। किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए उनको पता होगा कि पैसे में खर्च कर रहा हूँ तो कम से कम मेरी चीज़ में पैसे खर्च कर रहा हूँ। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टार रेटिंग सिस्टम सूबा भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मयार का तयन करेगा। पायलट प्रोजेक्ट में 5 बड़े शहरों के 250 रेस्टोरेंट्स को शामिल किया गया है। अभी आप अगर ये सर्च करेंगे, ये ऐप बन चुकी है, लेकिन हमने इसके स्टार्स को एक्टिव नहीं किया, तो यू विल नॉट फाइंड एनी स्टार्स, बिकॉज हम प्री लॉन्च के बाद जब इसको प्रॉपर लॉन्च करेंगे तो तब आप इनके स्टार्स को देख सकेंगे। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी अली रजा हाकवानी ने कहा कि पहले मरहला में लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला के रेस्टोरेंट्स को चेक किया जाएगा। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने गंगाराम और मजंग हस्पताल समेत टीचिंग हस्पतालों में डॉक्टर्स की एडहॉक भर्तियों का मुकम्मल शुदा प्रोसेस मनसूख कर दिया। भर्तियों के लिए दोबारा ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी आयद होने से कबल मुकम्मल होने वाली भर्तियों के अमल को अचानक मनसूख कर दिया। ज़राए के मुताबिक गंगाराम हस्पताल, मजंग हस्पताल, चिल्ड्रन हस्पताल फैसलाबाद और शेख जैद हस्पताल रहीम यार खान में पाबंदी से कबल एडहॉक बुनियादों पर सैकड़ों डॉक्टर की भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया और तकर्ररनामे जारी होने से पहले मौजूदा हुकूमत कायम होते ही भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम अब भर्तियों पर पाबंदी हटाए जाने के बाद पहले से मुकम्मल अमल को भी मनसूख करार दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से तमाम भर्तियाँ एडहॉक बुनियादों पर दोबारा ऑनलाइन दरखास्तें तलब की गई हैं। इस इकदाम की वजह से पहले से रिक्रूटमेंट में कामयाब करार पाने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स नए सिरे से भर्ती का अमल शुरू करने से शदीद मायूसी से दो चार हैं। लाहौर बोर्ड के तहत नहम जमात के इम्तिहान में 57% बच्चे फेल हो गए। महकमा तालीम ने ख़राब नताइज पर असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती करने का फैसला कर लिया। महकमा तालीम ने नहम जमात के खराब नताइज पर असातिज़ा को सजा देने का फैसला किया है। 25% से कम रिजल्ट पर 1 सालाना इंक्रीमेंट, 20% से कम रिजल्ट पर 2 सालाना इंक्रीमेंट और 10% से कम रिजल्ट पर 3 सालाना इंक्रीमेंट रोकने का फैसला किया गया है। 40% से कम नताइज देने वाले असातिज़ा को पैडा के तहत सख्त सजाएं दी जाएंगी। सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान रजा उल रहमान का कहना है कि असातिज़ा की गैर निसाबी ड्यूटियां कम की जाएं। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करने की तरफ माइल करें। खराब नताइज आने की सबसे बड़ी वजह कोरोना भी है। अंदरून शहर दहली गेट में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कई घंटे बिजली की बंदी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गई। मज़ीद उनका क्या कहना था, जानते हैं फ़हद कायूम से। जी फ़हद, बताइएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गेट में, जहाँ पर गुज़िश्ता कई घंटे से लाइट ना होने के बायस जो यहाँ के शहरी हैं, दुकानदार हैं, सरापा एहतजाज हैं, उनकी जानिब से बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और लेस्को के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कब से उनकी लाइट नहीं आ रही और बिलों के हवाले से उनके क्या मसाइल हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं कब से आपकी लाइट नहीं आ रही और लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? ये मुसलसल 3-3 घंटे की लाइट जा रही है। अभी भी आप देखें कि लाइट सारी ऑफ है और वर्किंग टाइम में मार्केट का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे दुकानदार तंग आ चुके हैं। हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जाती है। मार्केट में आगे ही कारोबार की पोजीशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और आप यकीन करें कि ये जो गवर्नमेंट आई है इसमें लोगों का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा और लाइट ने अलग से जान खा ली है। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जो कारोबार है लोड शेडिंग के बायस, लाइट ना होने के बायस यहाँ पर ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले, और जबकि लाइट होती नहीं है और बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद कयूम। और अब लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली हंगामा आरआई केस। सेशन अदालत ने मुस्लिम लीग के रहनुमा राना मशहूद, सैफुल मुलूक खोखर समेत 10 MPs की अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। इलेक्शन पेपर फाड़ने के केस में सैफुल मुलूक खोखर समेत 5 MPs की जमानतों में 4 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने गवाहों को शहादत के लिए तलब करते हुए मजीद समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी की। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस हिरासत से नौजवान की बाजियाबी केस की समाअत हुई। DIG इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल, SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर अदालत में पेश हुए। DIG की जानिब से मुलजिम को डकैती के मुकदमे में जेल भिजवाने की रिपोर्ट पेश की गई। जौहर टाउन धमाके में मुलव्वस 3 मुलजमान के खिलाफ जेल ट्रायल शुरू हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान में चालान की कॉपियां तकसीम कर दी। आइंदा समाअत पर मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के 399 उर्स की तकरीबात का आगाज़। मज़ार को 2 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब महकमा औकाफ सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, DG औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी और दीगर ने मज़ार को गुस्ल दिया। औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के 399 सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया। उर्स की तकरीबात के आगाज़ से कबल मज़ार को 2 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, DG औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, सेक्रेटरी औकाफ नबील जावेद, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मियाँ अब्रार अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ वाहिद अजमन ज़िया, डायरेक्टर स्टेट औकाफ वसीम अब्बास, चेयरमैन अमूर मजहबी कमेटी मोहम्मद शहजाद सुल्तान समेत हकीकतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इतने लोगों का जम गफ़ीर यहाँ पे आना इस बात का सबूत है कि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है मोहब्बत और अकीदत के साथ इंसानियत से मोहब्बत सिखाई। तो आज जो वक्त इस टाइम गुजर रहा है, हमें ज़रूरत है ऐसे औलिया सूफिया कराम की। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली ने कहा कि गुस्ल की तकरीब में शिरकत से बेहद खुश हूँ। DG औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि अकीदतमंदों का जम गफ़ीर की आमद इस बात का सबूत है कि हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का सूफिया कराम में आला मुकाम है। इस इवेंट पर और इस रूह परवर तकरीब में हज़रत मियाँ मीर की जो शख्सियत है उसके आज जबकि इत्तेहाद पसंदाना जो रुझानात है वो बहुत ज़्यादा तरवीज पा रहे हैं। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के गुस्ल मुबारक की तकरीब के बाद महफिल समा का एहतमाम भी किया गया। कवाल कामरान यूसुफ, मियाँ मीरी और महमूब अहमद आज़ाद ने सूफियाना कलाम सुनाकर हाजरीन से दाद वसूल की। कैमरामैन जाहिद मलिक और खालिद मलिक के साथ महर अली अकबर, सिटी 42। दूसरी जानिब सलाम मुतासरीन की मदद के लिए मुस्लिम लीग नून भी पेश लीग रहनुमा राना मुबशर इकबाल, मियाँ इमरान जावेद और राना राशिद मिनहास की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 7 ट्रक इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के MNA राना मुबशर इकबाल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुतहरिक ख़याबान अमीन से 7 ट्रक इमदादी सामान लेकर सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए रवाना हो गए। राना मुबशर इकबाल का कहना था सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। दिन रात लगे हुए हैं और हमारा सियासतदानों का सियासत से हट के फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कौमी फरीज़े में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो हमारे भाई बहनें और छोटे छोटे बच्चे उधर बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, हम भी जाके जो कर सकते हैं उस कार्य खैर में हिस्सा डालें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद मिनहास और बीबी वडेरी ने कहा मुश्किल के इस वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। 5000 लोगों का जो राशन है, खाना है, वो लेके हम पंजाब के अंदर जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो सिलसिला है इसको जारी रखेंगे। इस दफ़ा हम पंजाब जा रहे हैं और आने वाले कुछ हफ्ते के अंदर हम इंशाल्लाह ताला सिंध और ऐसे ही
KPK और बलूचिस्तान में भी जाएंगे। इंशाल्लाह ताला राजनपुर, रुझान और फाजलपुर के इलाकों में कल ये सामान बांटेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भिजवाए गए इमदादी सामान में खुश्क दालें, आटा, चीनी, चावल समेत दीगर अशिया शामिल हैं। लीगी रहनुमाओं का कहना है मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान की सबको बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। कैमरामैन शोएब के साथ उमर असलम, सिटी 42। PC होटल में 38वीं पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कालीन नुमाइश 2022 का इनेकाद हुआ। 52 के करीब हाथ से बने कालीनों के स्टॉल्स लगाए गए। 80 से ज़ायद गैर मुल्की खरीदारों ने भी नुमाइश का दौरा किया। पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन अख्तर नजीर खान, वाइस चेयरमैन एजाजुर रहमान, सीनियर चेयरमैन नईम साजिद ने शिरकत की। सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज, अब्दुल्ला लतीफ, रियाज अहमद चौधरी, कौंसल जनरल तुर्की आमिर समेत दीगर भी शरीक हुए। पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन अख्तर नजीर खान ने शुरा के हमरा रिबन काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया और क्लीन स्टॉल्स का भी दौरा किया। अख्तर नजीर का कहना था कि नुमाइश पाकिस्तान कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपने वसाइल को इस्तेमाल करके मुनक्किद कराई है। इस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन हुकूमत ने किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया। हमें कोई माली ताउन जो है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है, हमारा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड कटता है, उसमें से हमें फंड्स दिए जाते हैं कि हम एग्जीबिशन करें, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने कोई पैसे नहीं दिए, कोई माली ताउन नहीं किया और ये टोटल इवेंट जो है हमने ख़ुद किया है। इस वक्त यहाँ स्टॉल्स जो हैं वो 52 हैं और तकरीबन 80 के करीब फॉरेन कस्टमर्स जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं। शुरा ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि क्लीन इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए काम करे, क्योंकि इससे छोटा तबका अपना पेट पालता है। मैं सिर्फ ये गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ी सी अगर वो सपोर्ट दे दें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ये जितने आप स्टॉल इस टाइम देख रही हैं, यहाँ ऑलमोस्ट 100 के करीब स्टॉल्स हैं यहाँ, तो ये जितने भी हैं ये लोगों ने अपनी सेल्फ पॉकेट से ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इसके अंदर कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं आई। इनफैक्ट वी हैड अपील्ड बिफोर, जिसकी वजह से उन्होंने सुना नहीं। और सबसे बड़ा जो मेजर इस बेनिफिट है इस इंडस्ट्री का, इट्स अ कॉटेज इंडस्ट्री। इसके अंदर आपकी जो लो इनकम लेबर है वो बहुत उसको एम्प्लॉयमेंट के अंदर गेन मिलता है। शुरा का कहना था कि कलीन बनाना और फरोख्त करना एक आर्ट है। पाकिस्तान में आर्ट की कमी नहीं है। कैमरामैन खालिद की हमरा फरीहा बतूल से T42। सर्विस टायर्स और गोल्ड मेडलिस्ट नूह दस्तगीर के दरमियान मुआहदा। तकरीब में CEO सर्विस उमर सईद और बिजनेस हेड सर्विस टायर्स मोहम्मद एजाज मौजूद थे। मुआहदे के तहत नूह दस्तगीर बट बहैसियत ब्रांड एम्बेसडर सर्विस टायर्स और SLM के मुख्तलिफ ब्रांड्स की तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बिजनेस हेड सर्विस टायर्स मोहम्मद एजाज का कहना था कि सर्विस टायर सिर्फ वेट लिफ्टिंग के मैदान में ही नहीं बल्कि सेहत और खेलों के मुतालिका दीगर शोबों में भी अपनी खिदमात और सपोर्ट फराहम करता रहा है। तालीमी शोबा हो या फलाह बहबूद, सेहत आमा का मैदान हो या समाजी सरगर्मियाँ, सर्विस ग्रुप ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। CEO सर्विस उमर सईद का कहना था कि नूह बट हमारे मुल्क का कीमती असासा है। सर्विस टायर्स और SLM के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब करके खुशी हो रही है। डॉक्टर निसार अहमद राना ऑडिटोरियम में यूनिक करिकुलम डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अब्दुल मन्नान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप में रेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, मैनेजर प्रमोशंस स्पोर्ट्स एंड एडमिन प्रोफेसर रियाजुल हक समेत असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में डॉक्टर अब्दुल मन्नान खुरम ने कहा, तुलबा की किरदार साजी तज़किया नफ्स और उन्हें मुआशरे में नुमाया मुकाम दिलवाना है असातिज़ा के अव्वलीन फ़ायज़ का हिस्सा है। अखलाकी वजूद की परवरिश और तुलबा की समाजी तरबियत तालीमी इदारों के मकासद में शामिल है। अब्दुल मन्नान खुरम का कहना था, असातिज़ा का ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो तुलबा के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बेदार करे। तकरीब में असातिज़ा को हम नसाबी सरगर्मियों और ख़ुसूसन अक्स यूनिक मैगज़ीन के हवाले से तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया, जबकि असातिज़ा को दस्तावेज़ी फ़िल्म भी दिखाई गई।
लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में बिला मुकाबला फतह पर साबिक सीनियर नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ख्वाजा शाहजेब अकरम का प्याफ कायदीन के एजाज़ में अशाया। पैटर्न इन चीफ प्याफ मियाँ अंजुम नसार, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियाँ मोहम्मद अली, एग्जेक्टिव मेंबर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट, सीनियर ताज रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर, चेयरमैन फराया तनवीर शेख समेत दीगर कारोबारी शख्सियात की शिरकत। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में बिला मुकाबला फतह पर साबिक सीनियर नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ख्वाजा शाहजेब अकरम की जानिब से प्याफ कायदीन के एजाज़ में इशाया दिया गया। पैट्रन इन चीफ प्याफ मियाँ अंजुम निसार, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियाँ मोहम्मद अली, एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट, सीनियर ताज रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर, चेयरमैन फराया तनवीर शेख, सदर दारोगावाला इंडस्ट्रियल एरिया शोबान अख्तर, सदर खिदमत ग्रुप हॉल रोड बाबर महमूद, वाइस चेयरमैन एप्टमा शबीर हीरा, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर, EC मेंबर प्याफ अब्दुल मजीद शहबाज असलम, साबिक वाइस चेयरमैन और दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।